تمجید کرتے ہیں اس لمحے کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں رکھا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اب ہم ٹوٹلی طور پہ یہ خداوند کے ہینڈ اوور کرتے ہیں یہ میٹنگ، کیونکہ خداوند پاک روح ہی اسے لیڈ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میرے خداوند ایک کافی دیر سے میرے دل میں ایک جو کورس میرے دل میں ڈال رہے ہیں وہ میں گانا چاہوں گی میٹنگ کے شروع میں ہی، تاکہ خداوند پاک روح کو ہم ویلکم کریں اپنے گیتوں کے ذریعے، تاکہ وہ ابھی سے اس کا کنٹرول لے۔ خداوند ہواؤں میں، فضاؤں میں خداوند پاک روح کا کنٹرول لو۔ خداوند کے ہینڈ اوور کرتے ہیں یہ میٹنگ کو، خداوند کے لہو کو مانگتے ہیں اپنے اوپر، ایک ایک گروپ کے ممبر کے اوپر۔ پریز لارڈ، ہاللویا 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 ہاللویا۔ یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، ہاللویا 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 ہاللویا۔ تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے، ہاللویا۔ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Lord, praise Lord. Thank you, Jesus. خداوند تیری موجودگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ تو نے اس گروپ کو پیارے خداوند سب دنیا سے الگ کیا ہے خداوند، اپنے لیے چنا ہے، ادھر تیرا پاک روح کام کرتا ہے، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ تیرا شکر ہو خداوند، تیرا تخت ہمارے درمیان لگ چکا ہے خداوند، تیرا پاک روح ہم سب جہاں جہاں دور نزدیک بیٹھے ہیں خداوند، تیرا پاک روح ہم سب میں جنبش کر رہا ہے۔ جبکہ خداوند اس میٹنگ کو ہم شروع کر رہے ہیں تو ابھی سے خداوند اس پیارے خداوند میٹنگ کا ہولڈ تجھے دیتے ہیں، نیٹ ورک کا ہولڈ تجھے دیتے ہیں پاک روح۔ ابھی سے اپنا جلالی کام کر خداوند، اور اس میٹنگ کو کنٹرول کر ہر طرح سے ورشپ میں خداوند، کلام میں جو خداوند تیری طرف سے ہو خداوند، جو پیارے خداوند ہدیے نذرانے چڑھائے جائیں خداوند دعا کے ذریعے، وہ ابھی سے ان سب کا کنٹرول خداوند تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند تیرے لہو میں چھپاتی ہوں۔ یس لارڈ جیزس، تھینک یو لارڈ جیزس۔ اب ہم میٹنگ کے اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم ورشپ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ فرسٹ جو ورشپ ہے وہ ارون بیٹا کرے۔ پریز لارڈ، پریز دی لارڈ۔ دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سام کے رکھی، میری نکی کسے کم نہ آوے، میری نکی کسے کم نہ آوے، تیری نکی ہے کچھ ہور تے یسو مینوں سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سام کے رکھی، میں کمزور تو زورا والا پیارے، میں کمزور تو زورا والا پیارے، تیرے فضل دی لوڑ تے یسو مینوں سام کے رکھی، سام کے رکھی، دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سام کے رکھی، بند بہشت والا بوا
بند بہشتہ والا بوا دتا یسو نے اج کھولتے یسو مینوں سام کے رکھی دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سام کے رکھی دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سام کے رکھی آمین. پریز دی لارڈ. پریز دا لارڈ. گاڈ بلیس یو بیٹا. خداوند آپ کو برکت دے. بڑی کثرت سے خداوند کا جلال آپ کے اندر ظاہر ہو. یسوع کے نام میں آمین. میں ایک ورس پڑھوں گی. اپنے کام خداوند کے سپرد کر تو وہ تیرے منصوبے قائم رہیں گے. پریز لارڈ. یقیناً جب ہم اپنا زور اپنا عقل سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اپنے کام اپنے ہر منصوبہ اپنے ہر کام میں خداوند کو شامل حال کرتے ہیں، خداوند کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو وہ خداوند پھر اپنی وہ پرفیکٹ ول کو اس میں ظاہر کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. پریز لارڈ. اب ہم نیکسٹ ورشپ جو ہے سسٹر سونیا کے ساتھ کریں گے. پریز لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، تو دے اپنی حضوری دے اپنا مسا، تو شو مجھ کو شفا سے، تو اپنی دیا سے بھر مجھ کو مسا سے، یشو کی وفا سے. شو مجھ کو شفا سے، تو اپنی دیا سے بھر مجھ کو مسا سے، یشو کی وفا سے. تھوڑے سارے جے بندن میرے خدا، تو توڑ سارے جے بندن میرے خدا، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، تو اے روح خداون، اے روح خدا، اے روح خداون، اے روح خدا، کر مجھ پہ فضل تو جے میری دعا، کر مجھ پہ فضل تو جے میری دعا، بھر اپنی محبت سے مجھ کو صدا، تو بھر اپنی محبت سے مجھ کو صدا، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، تو مجھے اپنی راہوں پہ چلنا سکھا، مجھے اپنی راہوں پہ چلنا سکھا، مسیحا کی مانند مجھے تو بنا، مسیحا کی مانند مجھے تو بنا، میرے لبوں پہ تیری حوصلہ، تو میرے لبوں پر ہو تیری ثنا، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، تو دے اپنی حضوری دے اپنا
Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। नरम जवाब गुस्से को फेर देता है, पर कराहत बात गजबनाक होती है। प्रेज लॉर्ड। यकीनन जब हम अपने आप पे अपनी जुबान पे कंट्रोल रखते हैं, ये भी खुदावंद के हमने स्टडी में लिया था कि खुदावंद के पाक रूह के फल जो हैं जब हमारी जिंदगी में आते हैं, तब हम हमारे में हलीमी और ये नरम जुबान हमारी होती है। तो इसी के को खुदावंद से हम आज मांगेंगे कि खुदावंद हमारे अंदर से वो गुस्से की स्पिरिट, हर तरह की बदी की स्पिरिट जो कोई किसी तरीके से शैतान हमें जकड़ने की कोशिश करता है, आज खुदा वो हर बंधन से हमें आजाद करे यीशु के नाम में। प्रेज लॉर्ड। अब मैं नेक्स्ट वर्शिप के लिए सिस्टर आंटी महेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और वर्शिप में आगे लीड करें। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड जी, प्रेज लॉर्ड जेएमसी की जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरा रात काम करे, पवित्र आत्मा काम करे प्रभु। तेरे चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਤਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਿਓ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਯਿਸੂ ਨਾ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ। जेएमसी की जी। Yes, Lord.
Praise the Lord. इसको हाँ, किसी ने अगर गीत गाना है तो गा सकते हैं। एक और गीत गाइए जी। गाना अच्छा जी ठीक है। की फायदा जरा बदाना नी लेना, यही है वाहिदा कहना। की फायदा जरा बदाना नी लेना, यही है वाहिदा कहना। बाहिरे विच खड़के जे तू रब नू पुकारेगा, उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खिलारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खिलारेगा। तेरी कीती होई कमाई नू, तेरी कीती होई कमाई नू ना बरोधी खाएगा। चार सवेरे दूतां दे रब पैरे लाएगा। चार सवेरे दूतां दे रब पैरे लाएगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खिलारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खिलारेगा। ना कुपी चों तेल मुकूंगा, ना मटकी चों आटा। ना कुपी चों तेल मुकूंगा, ना मटकी चों आटा। हर थां तेरी जित होएगी, ना पऊंगा काठा। हर थां तेरी जित होएगी, ना पऊंगा काठा। तेरे सारे कर्ज यीशु जी, तेरे सारे कर्ज यीशु जी आप सवारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खिलारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खिलारेगा। जे डिग पे यीशु जी तेनू खूचों कड्डूंगा। मेरा सच्चा रब खुदा दरिए दे सुच्चे दा। जे डिग पे यीशु जी तेनू खूचों कड्डेगा। मेरा सच्चा रब खुदा दरिए दे सुच्चे दा। मेरा सच्चा रब खुदा दरिए दे सुच्चे दा। जे को तेनू मारूं, जे को तेनू मरूंगा, यीशु जी आप संभालेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खिलारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खिलारेगा। प्रेस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु दा, शुक्रिया खुदा। हालेलुया। Praise God. God bless you, आंटी जी। खुदावंद आपको बरकत दे। Praise Lord. अब हम आगे अपने इबादत के अगले हिस्से में दाखिल होंगे और मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आएं और रोटी और पानी के लिए दुआ करें। Praise Lord. सिस्टर जी। Praise the Lord. खुदावंद आपको बरकत दे सनिया, और प्रस्तुति के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद का मसा आपके ऊपर ठहरा रहे। खुदावंद हमेशा अपने परों में संभाल के छुपा के रखे और खुदावंद आपको पाक दामन कमारी की मानिंद तैयार करे। गॉड मास्टर, खुदावंद का शुक्र हो। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस ओरे शुक्रिया खात्रिया, ओरे बेशेरे बेरे बेरे सियारा शुक्रिया खात्रिया रबा रबा। हालेलुया रे शेरे बेरे बेरे कियारा सियारा सत्तरिया शियरा बसंदरा संदरा शियरा खात्रिया खात्रिया खात्रिया।
ओ हालेलुया हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाम यीशु। खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदावंद तू हमारे आने से पहले ही खुदावंद यहाँ पे मौजूद था। खुदावंद हम तेरी दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू किस कदर हमसे मोहब्बत करता है। खुदावंद तू हम हमारा इंतजार नहीं करता कि पहले हम ठीक हो। खुदावंद जब हम गंदे ही होते हैं, जब हम गुनाह में थे, जब हम खुदावंद तुझे दुख दे रहे हैं, तुझे नाराज कर रहे हैं, तेरे खिलाफ वो गंदे काम कर रहे हैं, खुदावंद तू तभी हमारी जिंदगी में आता है हमें पाक और साफ करने के लिए। खुदावंद इस तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तू बीमारों के लिए आया। खुदा जो गुनाह में पड़े हुए थे, खुदा तू उनके लिए आया। खुदा तेरा कलाम फरमाता, तूने फरमाया कि जो बीमार हैं उनको तबीब की जरूरत है, खुदा ना कि तंदुरुस्तों को। खुदा इस तेरे बड़े भेद के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा हम इंसान हैं, हम किसी के ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं कि ये जब ठीक होगा तब हम उससे मोहब्बत करेंगे, तब उसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन खुदावंद वो जो तेरी मोहब्बत है खुदावंद, वो मिजाज हमारे अंदर आ जाए कि जब हम गंदे हैं, जब हमारे बच्चे या हमारे बहन भाई या रिश्तेदार या हमारा हस्बैंड या बेबी, जब वो खुदावंद के साथ उस तरह से नहीं चल रहा, हम तब ही उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ खुदावंद वो अच्छा बिहेव, अच्छा बर्ताव करें, जिससे खुदावंद उसकी जिंदगी भी तब्दील हो। खुदावंद आप वो जो तेरा मिजाज है वो हमारे अंदर आ जाए। खुदावंद वो दर्द, वो खुदावंद मोहब्बत ऐसी खुदावंद हम में आ जाए हमारे अंदर। खुदावंद खुदा वो तेरा रहम, वो तेरा तरस आ जाए। खुदावंद हम दूसरों के ऊपर खुदावंद खुदा नाराज ना हो, गुस्सा ना करे ना, और खुदावंद हमारे अंदर ये ना हो कि जब ये मुझे मोहब्बत करेगा, जब ये मेरी इज्जत करेगा, तब मैं इससे मोहब्बत करूंगी, तब मैं इससे प्यार करूंगी। खुदा वो तेरा मिजाज हमारे अंदर आ जाए। खुदा हम दूसरों को माफ करने वाले हों। खुदा हम दूसरों पे तरस खाने वाले हों, रहम करने वाले हों। खुदा उस सारी जो तेरी खुसूसियात हैं खुदा हमारे अंदर आ जाए, तेरी सिफतें हमारे अंदर आ जाए। खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, एक एक को छू खुदा, एक एक को बरकत दे, एक एक के मिजाज को खुदा अपने मिजाज जैसा बना दे। खुदा हमारे बिहेवियर ऐसे ना हो, हम खुद गर्ज ना हो, सेल्फिश ना हो। खुदा हमारे अंदर खुदा ये खुदा जो गंदी आदत है खुदा, हम दूसरों पे नुक्ताचीनी करते रहते हैं, दूसरों के अंदर कीड़े निकालते रहते हैं, और हम अपने तरफ नहीं देखते खुदा कि हमारे अंदर कैसे गंदे काम हैं जो दूसरे हमारे बहन भाई या हमारे रिश्तेदार या हमारे खुदावंद वो हमें बर्दाश्त करते हैं। खुदावंद तू हमें बर्दाश्त कर रहा है। खुदावंद हमें माफ कर, एक एक को खुदावंद यीशु जो हमारे इस ग्रुप में हैं, जो इस मीटिंग में हैं, खास तौर पे उन पे खुदावंद वो तेरा रहम, वो तेरा तरस, वो तेरा मिजाज आज खुदा मांगती हूँ। खुदावंद एक एक को छू खुदा हमारे अंदर से वो गंदी बातें, वो गंदे काम निकल जाएंगे यीशु के नाम से। खुदावंद और हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना खुदावंद यीशु तुझे पसंद आए। खुदावंद जब भी शैतान हमें देखे तो खुदावंद वो शर्मिंदा हो। खुदा उसको हमारे अंदर कोई ऐसी बात ना मिले कि वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, हमारी शिकायतें जाके खुदा तेरे हुजूर लेके जाए। खुदा हमारे सारे वो गंदे काम जो हैं खुदा तेरे मिजाज में तब्दील हो जाए। खुदा यीशु हम तेरी मानद बन जाए। खुदा यीशु हमारे अंदर से खुदा यीशु तुझे अपनी खुशबू मिले। खुदा तेरे दिल को तसल्ली मिले। खुदा जब हम बोलें, जब हमारा रवैया तेरे जैसा हो तो खुदा तेरा खुदा तू फख्र हम पे करे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस तेरे मीठे कलाम के लिए जो हमें बदल रहा है, जो हमें रोज रोज पाक और साफ कर रहा है, जो हमारे अंदर से वो गंदगी को धो रहा है। खुदा और रोज जो तू हमारे साथ बोलता है, कलाम करता है खुदा
तेरे मसा के लिए हम खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा हमें बदल रहा है, तू हमें तब्दील कर रहा है खुदा, हम पुरानी मैं को हमारे अंदर से निकाल रहा है खुदा, अंदर नई मैं नई मशकों में भर रहा है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा कि तू हमसे इस कदर मोहब्बत करता है खुदा, हम तुझे रोज दुख देते हैं, नाराज करते हैं खुदा तेरे खिलाफ काम करते हैं, लेकिन तू फिर भी रोज हमारे पास आता है, रोज हमें अपने सीने से लगाता है खुदा, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम तेरा शुक्र कर सके खुदा, हम तेरे कदमों को चुनते हैं, अपने सरों को तेरी हुजूरी में झुका देते हैं, क्योंकि खुदा तू ही हम तारीफ और सारी सताइश के लायक है खुदा। दूसरे खुदा तो कुर्बानी मांगते हैं खुदा, दूसरे खुदा तो खुदा हमसे चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ करें, लेकिन खुदा तूने हमारे लिए पहले जान दी, तूने हमारे लिए सलीब पे जान दी खुदा तूने हमारे वो सारे जो गुनाह थे अपने ऊपर ले लिया खुदा वो कुर्बानी, वो जो सब कुछ वकील जो हमारे ऊपर ठोके जाने थे खुदा, वो तूने अपने हाथों में ठुकवा लिए खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, जो शर्मिंदगी, जो रसवाई, जो जिल्लत हमें बर्दाश्त करनी थी खुदा वो तूने सारी हमारी जो है वो अपने ऊपर ले ली खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। आज तेरे खून के वसीला से, तेरे इस जो तूने बदन हमारी खातर तड़वाया खुदा, उसके वसीले से आज हम दिलेरी के साथ खुदा आज खुदा जब तेरे लहू को लगाते हैं, पाक साफ होते हैं, तो हम दिलेरी के साथ खुदा उनके तख्त के सामने खड़े हो सकते हैं और शैतान को शर्मिंदा कर सकते हैं खुदा। तेरा ये लहू ही है जो हमें पाक और साफ कर देता है, सारी गंदगी को जो हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं खुदा, जो शैतान के लोग बोलते हैं खुदा, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, चिल्ले चढ़ाते हैं खुदा, वो सारे तेरे लहू से मिट गए हैं। आज हम आज़ाद हैं, बहाल हैं खुदा, तेरी वजह से खुदा, तेरे वसीला से आज खुदा हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं खुदा। आज हम शैतान की कैद में नहीं हैं, जहाँ कहीं भी उसने जकड़ा हुआ है खुदा हमारे अंदर किसी के लिए कोई नफरत है, कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, बुग़्ज़ भरा हुआ है खुदा आज ये सारी बदी की कुव्वतों को खुदा यस्सु के नाम से, दुश्मन की फौजों को खुदा तेरे यस्सु नाम से अपने बदनों के अंदर से, अपने घरों के अंदर से, अपने ग्रुप के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। तेरी मोहब्बत हमारे अंदर भर जाए खुदा और तेरा कलाम फरमाता है कि तेरी मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी है, हमें और किसी की मोहब्बत, किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ तेरी मोहब्बत खुदा, तेरे रहम की, तेरे तरस की, तेरे फजल की ज़रूरत है खुदा, जो हमारे लिए काफ़ी है खुदा, जो हमें सारी नाराज़गी से, गंदगी से खुदा, नापाकी से खुदा पाक और साफ कर सकता है। जब तेरी मोहब्बत हमारे अंदर आती है तो खुदा हमारे अंदर दूसरों के लिए खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि जिसके अंदर मोहब्बत है वो सारी चीज़ों की बर्दाश्त करती है खुदा वो दूसरों को माफ़ कर देती है खुदा। इसलिए वही मोहब्बत खुदा मैं एक एक के अंदर मांगती हूँ खुदा, हमारे दिल तेरी मोहब्बत से लबरेज हो जाए, भर जाए खुदा और खुदा हमारे अंदर से वो कड़वाहट, वो तलखी खुदा वो गंदे बिहेवियर जो हम किसी के साथ सही तरीके से बात नहीं करते, किसी को इग्नोर करते हैं, किसी को हकीर जानते हैं खुदा, वो सारे गंदे बिहेवियर हमारे अंदर से निकल जाए और हम दूसरों को अपने से बेहतर जाने खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ये ये तेरा लहू ही है जो हमें खुदावंद तेरे जैसा बना सकते हैं और कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी दवाई नहीं है दुनिया में जो हमारे दिल को तब्दील कर सके, जो हमारी सोचों को बदल सके ये वाहिद यीशु तेरा लहू है और तेरे लहू का एक ही कतरा हमारे लिए काफी है, जो हमें तब्दील करते, जो हमारे अंदर से सारी नापाकी को खुदा गलाजत को पाक और साफ कर दे। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ
तेरे इस भेद के लिए खुदा खुदा, तेरे इस गहरे मुकाशफे के लिए खुदा खुदा, जो तू हमारे ऊपर खोल रहा है कि तेरा लहू ही हमें पाक और साफ कर देता है, कर सकता है। और खुदा यही हमारे रवैयों को तब्दील कर सकता है। खुदा यीशु, मैं एक एक के ऊपर खुदा यीशु तेरे लहू को मांगती हूँ, पाक कर दे, साफ कर दे, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा एक एक को यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। तेरे लहू से धो के जिस्म के एक एक अज़ा को पाक और साफ कर देती हूँ। खुदा खुदा, आज हम पहले जैसे ना रहें। जब हम खुदा इस मीटिंग से तेरी हजूरी से उठे तो खुदा हम पहले जैसे ना हो, हम तब्दील हो जाए। खुदा खुदा, हमारे अंदर से वो जो बातें तुझे पसंद नहीं है वो सारी खत्म हो जाए, निकल जाए, पानी की तरह बह जाए। खुदा खुदा, खुदा खुदा, उनका कोई असर हमारी जिंदगियों पे बाकी ना रहे। खुदा खुदा, और हम खुदा जब तेरे कलाम को सुने, खुदा खुदा तेरे मुंह की बातों को सुने, तेरी मीठी बातों को सुने, तो हमारे अंदर वो तेरी मिठास आ जाए। खुदा खुदा, तेरे कलाम की वजह से खुदा खुदा हमारे अंदर से खुदा वो कड़वाहट, वो तलखी, वो सख्त जो हम दिल को कर लेते हैं दूसरों के लिए, खुदा खुदा वो सारी सख्त दिली खुदा खुदा नरमी में तब्दील हो जाए। हमारे अंदर हलीमी आ जाए। खुदा खुदा, वो पाखरू के फल जो है खुदा खुदा, तहम्मुल, बर्दाश्त, खुदा खुदा हमारे अंदर आ जाए। खुदा यीशु के नाम से खुदा, एक एक के जिंदगी में वो पाखरू के फल काम करना शुरू हो जाए। खुदा, जो भी इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, जो नहीं आए खुदा, उनकी जिंदगी में भी खुदा, जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं, सबकी जिंदगियों में खुदा खुदा वो पाक रूह के फल काम करना शुरू करते। और शैतान जब हमें देखे, दुश्मन की फौजें जब हमें देखें, तो वो कुड़े, वो जले, वो कटे, खुदा खुदा उनको आग लगे। खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा, जब हमारी जिंदगियों में देखें कि हमारे अंदर मेल मिलाप है, प्यार मोहब्बत है, सुलह सलामती है, ये गानगत है खुदा खुदा, तो उसको आग लगती रहे, वो चलता रहे खुदा खुदा यीशु के नाम से। और हम तुझ में तसल्ली को, इत्मीनान को, खुशी को, शादमानी को रिसीव करें। वो तसल्ली, वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है, मैं एक एक के लिए, ग्रुप के एक एक मेंबर के लिए मांगती हूँ। और खास तौर पे जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं खुदा, उनके ऊपर वो खास तेरा मसा खुदा आज ठहर जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा आज खुदा खुदा तू खुदा हमारे जिंदगियों को तब्दील कर देना खुदा यीशु के नाम से। खुदा एक एक को टच करना खुदा खुदा, जब हम इस रोटी और पानी को लेते हैं, इस तेल को लगाते हैं, तो खुदा खुदा सुपर नेचुरल तरीके से खुदा खुदा रूहानी उस तेरे जोर से, तेरी ताकत से खुदा खुदा हम तब्दील हो जाएं। खुदा खुदा, हम पहले जैसे ना रहें। खुदा खुदा, आज फिर से नए सिरे से खुदा खुदा जिस तरह पानी का बपतिस्मा लेने के वसीले से हम खुदा तुझे पहन लेते हैं, आज फिर से खुदा हम तुझे पहन ले, नए सिरे से फिर से खुदा खुदा पैदा हूँ तुझ में। खुदा खुदा तेरे कलाम के वसीला से खुदा खुदा, आज फिर से नई जिंदगी हमारे अंदर आ जाए, नई खुशी, नई शादमानी खुदा खुदा हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से। खुदा खुदा, जब हम इस रोटी और पानी को लें जो कि पाक है खुदा खुदा, वो हमें भी पाक पाक बनाती जाए, पाक करती जाए। खुदा खुदा, खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा, आज खुदा तो अजीब काम करना, वो मौजूदा तरीके से खुदा खुदा हमारी जिंदगियों में तब्दीली आ जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा खुदा, हम गवाही दें कि मेरे यीशु ने, मेरे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसने हमारे मिजाज को तब्दील कर दिया, हमारे रवैयों को तब्दील कर दिया खुदा खुदा, हमारे अंदर से वो सख्ती को निकाल दिया खुदा खुदा, हमारे अंदर वो नरम मजाजी को लेके आया खुदा खुदा, हमें माफ करने वाला दिल दे दिया खुदा उसने। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, जहाँ जहाँ से खुदा जब ये इस पानी को पीते हैं जो कि तेरे लहू में तब्दील हो गया, जहाँ जहाँ हमारे बदन के अंदर से, हमारी नस नस से गुजरे, हमारी नस नस, रग रग खुदा खुदा पाक और साफ हो जाए। खुदा खुदा, वो गंदी बीमारियां, वो लानती बीमारियां, वो गंदे मिजाज, वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो हसद, खुदा वो परेशानी, वो बीमारियां यीशु के नाम से आज जब हम इस पानी को पिए तो वो खत्म हो जाए, उनका नामो निशान मिट जाए
यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से इस पानी को पिए और इस रोटी को लें जो कि अब खुदाम यीशु मसीह के बदन में तब्दील हो गई है, खुदाम यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गई है। आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आप हेडफोन की आवाज बहुत आ रही है पीछे। ओह अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, फिर आवाज थोड़ी खराब। ओके, ठीक है जी। दी दुआ बहुत अच्छी आपने की। थैंक यू दी। Praise मेरे God. दिल को छू रही थी आपकी, इतनी आप दुआ कर रहे थे ना, मेरा दिल अंदर से बहुत ऐसे ये हो रहा था, मैं बहुत इसमें जा रही थी, डूब गई थी आपकी दुआ में, एकदम गहराई में चले गई थी मैं। Praise God. खुदा के नाम को इज्जत और पूरी जलाल मिले तरह और से मैं खुदा गहराई में चले गई थी, मेरे मन को बहुत मतलब इतना सुकून और इतना इत्मीनान मिल रहा है, मैं इतनी बेचैन, मैं इतनी ये थी, मुझे पूरी गहराई में मैं दुआओं में आप जब कर रहे थे एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद ने आपको टच किया है, वो तसल्ली और इत्मीनान आपको दिया है। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जहाँ पे आता है वहाँ पे जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, वहाँ पे तसल्ली और रोने के लिए इत्मीनान। मेरा दिल कर रहा था, आप जैसे दुआ कर रहे थे ना, मेरा मन ऐसे हो रहा था कि मैं दुआओं में आपके साथ में रोऊं, मैं चीख चीख के, ऐसे हो रहा था मुझे, मैं ऐसे तड़पने जैसा हो रहा था मुझे फील। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो रोएं खुदावंद के सामने, आप घुटने टेक के, हाथ उठा के, जब आपका दिल कर रहा हो। असल में वो खुदावंद पाकरू की एक मैं कहूँगी कि आवाज होती है, वो चाह रहा होता है कि हम हलीमी हमारे अंदर आ जाए और हम जिस तरह खुदावंद चाहे उस तरह आप दुआ करें। रोने को दिल कर रहा है, ऐसे रोया करें। ऐसे हो रहा था कि सारी दुआ आप मेरे लिए कर रहे थे, मैं इतनी गहराई में चले गई थी कि सब मेरे लिए हो रहा है, एक एक शब्द मेरे लिए है, एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकल रहे थे वो सब मेरे लिए, सब मेरे दिल को छू रही थी, एक एक शब्द मैं अपने आप के लिए महसूस कर रही थी मैं, प्रेज गॉड। एक एक शब्द मैंने आपके कानों से सुना गौर से। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे और तसल्ली दे, इत्मीनान दे, खुशी दे, शादमानी दे। खुदावंद में आप इसी तरह जुड़ी रहें और खुदावंद आपको खुशी से भर दे। आप खुद जो खुदावंद की तरफ से शादमानी मिलती है, आप भरी रहें, बल्कि आपके अंदर से दूसरों को भी जो खुशी है, शादमानी है, वो ट्रांसफर हो। जिस चीज से आप मिलें, आप के जो अंदर तसल्ली है, इत्मीनान है, वो दूसरों को भी मिले। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। गॉड। अंजना, या आप बताना अगर दोबारा से आवाज मेरी खराब हो तो मैं इसका कोई हल और निकालूंगी। हाँ हम जी। पढ़ गए हैं मकाशवा, लेकिन दुआ में मैंने नहीं देखा था क्योंकि मेरी आंखें बंद थी। अभी मैंने आपका मैसेज चेक किया, सॉरी। तो मकाशवा 13 बाब उसकी कल हमने 11 और 12 पे थोड़ी सी बात की थी और हमने कल ये सीखा था कि 5 ऐसी वजूहात हैं, रीज़न है कि जो रैप्चर है वो पहले होगा, मुसीबतों से पहले होगा। और ये खुद खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि जो मतलब जो जागते हैं, जो तैयार हैं, उनके ऊपर वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा, है ना? और खुदावंद के जो खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उनके ज़रिए जो तालीम मिली हमें, उनमें भी हमें यही पता चलता है कि जो रैप्चर है, जो ज़िंदा आसमान पे उठाया जाना है कलीसिया का, वो मुसीबतों के दौर से पहले होगा। तो इसलिए कल थोड़ा-सा हमने इस पे सीखा था कि मुसीबतों के दौर से पहले ये
होगा। और फिर हमने कल थोड़ी सी इस पे बात की कि 11 आयत में जो कि एक हवान तो हमने पीछे देखा था, यानी 13 चैप्टर के शुरू में, कि समंदर में से निकला है ना? लेकिन दूसरा ये जो हैवान है ये कहाँ से निकल रहा है? जमीन से निकल रहा है ना? अ, जिसके जो कि क्या है, बर्रे की तरह है, और उसके 2 सींग हैं, लेकिन वो बोल किसकी तरह रहा है? अस्तहे की तरह बोल रहा है वो, यानी वो ड्रैगन या वो पुराना वही जो सांप है, हवान जो है, बोलता वो उसकी तरह है, लेकिन उसने जैसे कह लें कि एक लबादा जो है वो ओढ़ा हुआ है बर्रे का। बर्रा किसको कहते हैं? यानी खुदावंद यीशु मसीह को अ, बर्रा कहा गया है ना? तो इसलिए ये जो हैवान है, ये ज़मीन से जो निकला है, अ, इसको यानी कहा गया है कि ये झूठा नबी है, झूठा नबी होगा यानी, क्योंकि इसने बर्रे का लबादा ओढ़ा हुआ है। तो ये, और इसको 2 सींग दिए गए हैं, यानी पावर है इसके पास। जो सींग है उसका मतलब है कि उसके पास ताकत है या इख्तियार है या पावर है उसके पास। तो इसलिए वो बर्रे की तरह है, यानी वो, इसलिए वो कलीसिया में से जो आलमगीर कलीसिया है, यानी पूरी दुनिया में जो कह लें कि मसीही हैं, उनमें से निकलेगा। और सब उसे समझेंगे कि ये क्या कहते हैं कि ये खुदावंद की कोई बात जो है, या वो हमारे साथ कर रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा होगा। उसने एक लबादा जो है वो ओढ़ा होगा कि वो होगा कह लें मसीही, लेकिन वो बात किसकी करेगा या उसका वो बोलेगा जो कुछ वो क्या होगा, वो शैतान की तरफ से हो या उस पुराने अस्तहे की तरफ से होगा। इसलिए, और सींग यानी उसके पास पावर होगी, इख्तियार होगा। यानी पूरी जो आलमगीर कलीसिया है या हमारे जो चर्चिस हैं या मसीही कौम जो है, उसमें से वो निकलेगा। क्योंकि ये लिखा है कि बर्रे के से 2 सींग होंगे, तो इसलिए बर्रा हम खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं, तो इसलिए ये वो मसीहियों में से ही निकलेगा। लेकिन वो क्या होगा? वो उसने बात वो शैतान की करेगा या एंटी क्राइस्ट की करेगा या मुखालिफ मसीह की जो ज़ुबान है वो बोलेगा, है ना? तो इसलिए वो मसीही कौम के ऊपर कह लें कि वो जबर करेगा, ज़्यादती करेगा। और जिस तरह के हम अ, देखते हैं कि जो काशफा मेरा ख़्याल 2 चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि जो मसीहियों पे ज़ुल्म-सितम हो रहा था तब भी, तो वो कहाँ से हो रहा था? वो खुदावंद के लोग ही कर रहे थे। जिस तरह हम देखते हैं कि जो पहली सदी में या खुदावंद यीशु मसीह के होते हुए भी किन लोगों ने यानी खुदावंद यीशु मसीह को कह लें कि सलीब चढ़ाया, या शागिर्दों के ऊपर, या जो पहली कलीसिया थी या उनके ऊपर ज़ुल्म-सितम किसने किया था, है ना? तो इसलिए वो मसीहियों में से ही निकलेगा या खुदावंद के लोगों में से ही वो निकलेगा, जो, और उसके पास इख्तियार होगा या पावर होगी कि वो जो कुछ कहेगा उसकी जो है वो मानी जाएगी। और ये हमने देखा था कि क्योंकि इसका ज़िक्र है कि उसका ज़ख्म-ए-कारी जो था, वो अच्छा हो गया था और वो बड़े-बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाज़िल कर देता था। और यानी उसके पास एक जैसे कह लें कि ये वाली भी पावर होगी, जैसे कि हमें पता है कि शैतान के पास भी एक पावर है, या जिस तरह हम आपने सबको ही में पता है कि जब खुदा उनका बंदा मूसा जो था, वो अ, फ़िरौन के सामने गया, तो वो जो मूसा की लाठी जो थी, है ना? वो साँप बनी थी, और जो शैतान के जो लोग थे, उसका भी उनके जो भी था वो साँप बन गया था, है ना? तो वो भी
इस तरह के जो क्या लें, हम मौत से तो नहीं कहेंगे कि वो शैतानी एक ताकत जो है उनके पास है। तो वो इस तरह के काम जो है करेगा। जैसे शायद आपने सुना ही है, कुछ लोगों ने शायद सुना हो कि एक नबी वहाँ पे या एक इस्राएली जो है रबी इस वक़्त इस्राएल में सामने आया है और उसके ज़रिए बड़े एक किस्म के मुआज़े जो हैं हो रहे हैं। लेकिन वो अभी सामने नहीं आ सकता, ये हो रहा है। ये इसीलिए जैसे कह लें ना कि एक तैयारी हो रही है, एक स्टेज तैयार हो रहा है और उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो अभी ये वाला जो वहाँ पे मुआज़े वो दिखा रहा है, वो रबी जो है, ये वो झूठा नबी नहीं है, वो सामने तब आएगा जैसा कि अभी हम इसमें देख रहे हैं कि पहले मुखालिफ़े मसीह है या ये सब तीनों जो हैं मिले होंगे, इकट्ठे होंगे। यानी मुखालिफ़े मसीह, एंटी क्राइस्ट और जो ये वाला जो हैवान है यानी झूठा नबी और पुराने साँप जो है वो अस्तहा है, वो सब मिले होंगे। वो अभी से कह लें मिले हुए हैं और वो तब सामने आएगा, है ना? या शायद आप लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने अ, चलो इस पे अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो ये असल में कहाँ से निकलेगा? ये ज़मीन से निकलेगा और ये कलीसिया में से ही निकलेगा। जिस तरह की स्मरना की कलीसिया जब हम मुकाशफा की किताब उसका जो दूसरा चैप्टर है उसमें हमने देखा कि मसीहियों पे ज़ुल्म-सितम हो रहा है, उनको कैद में डाला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है ना? उनको आग में जलाया जा रहा था और फ़र्क-फ़र्क तरीके से जैसे कह लें कि उन पे ज़ुल्म-सितम जो थे, अज़ियत जो थी, उस वक़्त मसीहियों को दी जा रही थी और अब भी जो है या उस वक़्त भी ऐसे ही होगा कि वो जैसे कह लें स्मरना की कलीसिया का जो पेशवा है, वो निकलेगा और ये हमने पढ़ा था उस दिन कि ये मिस्र, असूर, बाबल अ, मादी, फ़ारसी, यूनान और रोम में से ही निकलेगा। एंटी क्राइस्ट और ये जो पेशवा होगा, लीडर होगा या झूठा नबी जो है, इस इनमें से निकलेगा, है ना? और फिर हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है कि वो बड़े-बड़े निशान दिखाएगा, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाज़िल कर देगा और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देगा कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि कि जिस हवान के तलवार लगी थी, वो ज़िंदा हो गया और उसका बुत बनाओ। तो ये उस दौर में यानी ये मुखालफ़े मसीह और ये झूठा नबी और हमने उसमें शुरू में सीखा था कि जो अस्तहा है, पुराना साँप जो है या शैतान जो है, वो अपनी जो ताकत है या इख्तियार या कुदरत जो है, वो मुखालिफ़े मसीह को दे देगा। इसलिए ये जो मुखालिफ़े मसीह है उसमें हमने देखा था कि ये खुदावंद के खिलाफ या खुदावंद के लोगों के खिलाफ कुफ़र बकेगा और ये इस तरह के मुआवज़े जो है या इस तरह के काम जो है, वो भी दिखाएगा कि आसमान से आग नाज़िल होगी या इस तरह के काम जो है वो करेगा दिखाएगा और ये हवान का जो बोलना है, ये जो इसमें लिखा है कि वो बुत जो है वो बोलेगा भी। तो ये बुत जो है वो अब जो है हमें पता है कि एक ऐसी कंप्यूटर के ज़रिए या अ, ये जो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली हुई है, तो हमें पता है कि हो सकता है इस तरह है वो उसका हमान का जो बुत है, इस तरह से टीवी पे नज़र आए, कंप्यूटर पे या इस तरह यानी जो है वो उसका बुत जो है वो इस तरह बोलेगा भी और उसका बुत बनाया जाएगा, है ना? और ये
एक जो कानून है या ये मिल के जो तंजीमें हैं या कह लें जो क्या कहते हैं जो सारी कलीसियाँ हैं, जो आलमगीर कलीसिया है, जो पूरी दुनिया में मसीही हैं, ये सारे जैसे अब कह लें कि मिशन सारे जैसे कह लें सबकी अलग-अलग है ना? लेकिन उस वक़्त क्या है कि अभी से आपने देखा ही होगा कि मिल रहे हैं और एक इनका लीडर होगा, यानी कि वो जो झूठा नबी होगा, वो इनका लीडर होगा और वो इनकी जैसे कह लें कि इनकी तरफ से हो के या सारे फैसले या वो ऐसे रूल जो हैं, ऐसे कानून जो है बनाएगा। जैसा कि शायद आपने सुना ही हो कि जो पोप है, उसने 10 हुक्म जो हैं कोहे सीना पे जाके जहाँ पे मूसा को 10 हुक्म दिए थे खुदावन ने, है ना? तो इसने जाके पूरी दुनिया के लिए जो एक कह लें कि 10 हुक्म जो हैं वो बनाए हैं और उसमें सारे लीडर जो हैं या सारे वो इकट्ठे हुए हैं और जो कह लें कि उन पे कहते हैं कि इन पे अमल नहीं करेगा यानी सारी जगह यानी उनको चेक किया जाएगा कि कौन-कौन से लोग उन 10 हुक्मों पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? तो जो अमल नहीं करेगा उन 10 हुक्मों के ऊपर उनके लीडर या ऐसे वो रूल बनाए हैं कि वो उनको चेक किया करेंगे। तो जो अमल नहीं करेगा उन 10 हुक्मों के ऊपर, मानेगा नहीं, उनको पकड़-पकड़ के जेल में डाला जाएगा कि ये दुनिया के लिए खतरनाक हैं लोग ये जो इस पे अमल नहीं कर रहे। तो बिल्कुल इसी तरह उस दौर में भी इस तरह के हुक्म कह लें या इस तरह के कानून जो है वो बनाएगा ये कह लें झूठा नबी जो है क्योंकि इसके पास इख्तियार है, इसके पास अथॉरिटी है। अ, होगी अब भी है या होगी। तो ये इस तरह के कानून बनाएगा जो उस पे अमल नहीं करेगा तो उसको फिर पकड़-पकड़ के जेल में डाला जाएगा, कैद किया जाएगा या नहीं मानेगा तो उसको मौत की भी सज़ा जो है वो मिलेगी, है ना? तो इसलिए इसका जो बुत है अ, वो बनाया जाएगा। तो जिस तरह मेरा ख़्याल है आप सबको ही पता होगा कि जिस तरह दानियल नबी जो था, उसके दौर में नबूकत नज़र की जो थी वो मूर्ति बनाई गई थी और एक टाइम मुकर्रर होता था कि वो नरसिंगा फूँका जाता था या तो सारे ही क्या करते थे उसके सामने गिरकर सजदा करते थे। तो उस दौर में भी ये होगा कि हो सकता है कि टाइम सेट करे वो जो मुखालिफ़े मसीह है या ये छोटा नबी जो है या तो सारी ही दुनिया में इस तरह उसकी टीवी के ऊपर या किसी भी तरह है ना इंटरनेट के ज़रिए उसकी मूर्ति जो है वो नज़र आएगी या दिखाई जाएगी, तो सब लोगों को उसके सामने गिरकर सजदा जो है वो करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा तो उसको फिर पकड़-पकड़ के जेल में डाला जाएगा या उसको सज़ाए मौत जो या दी जाएगी, है ना? तो हम दानियल की किताब उसका 3 बाब उसकी 4 आयत से पढ़ते हैं कि ये जो दानियल के दौर में हुआ था, वो ही उस दौर में भी होगा। जी मेरा लंजना है हमारे साथ और वाफ़ा। दानियल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत से आप पढ़ना। जी। चैप्टर बाजी 3 चैप्टर वर्स वर्स 4 4 आयत। जी। तद एक ਢੰਡੋਰੀਏ ਨੇ ਉੱਚੀ ਹਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਕੌਮੋ, ਹੇ ਭਾਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੁਰੀ, ਬਾਂਸਰੀ, ਤਾਊ, ਸਾਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤਦ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ?
हाँ जी, पढ़ लेते हैं क्योंकि वो उसको सजा देगा, है ना, जो मूर्ति। ਹਾਂਜੀ हम्म। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਉਸ ਘੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ हाँ ਲਈ जी, ਜਿਸ ਵੇਲੇ तो आपको मैं याद ही होगा, हम गीतों में भी बड़ा गाते हैं कि वो जिनको आग की भट्टी में डाला गया था, है ना, सदरक मेसक अब्दुनगो, जो इसके दानियल के दोस्त थे, है ना, तो उन्होंने सजदा नहीं किया था। तो उससे भी हमें पता चलता है कि क्या कहते हैं कि उनको सजाए मौत जो थी उस वक्त दी गई थी, उन्होंने सजदा नहीं किया था, है ना। तो इस दौर में भी जब ये एंटी क्राइस्ट सबा, आप उर्दू में पढ़ सकते हो दानियल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत से। चलें ठीक है, फिर मैं और कोई सनिया आप और पढ़ उर्दू हाँ में जी जो कोई और उर्दू हाँ, सरैया सिस्टर पढ़ रहे हैं। श्रेया सिस्टर, हाँ जी, उसका नेट चला गया था। तो उस दौर में भी इस तरह कोई अगर तैयार हो तो पढ़ ले, सुरैया आप या सबा उर्दू में। तो उस दौर में भी ये हुआ था कि जो सजदा नहीं करते थे उनको पकड़ के उस आग की भट्टी में डाला गया था। तो बिल्कुल दानियल की किताब उसका 3 बाब उसकी 4 आयत से आप पढ़ना, मेरे ख्याल 7 आयत तक, कि आग की भट्टी में उनको डाला गया था। तो अब भी जो है, जो नहीं सजदा करेगा उस मुखालफे मसीह को या उसका जो बुत बना होगा, उसको जेलों में पकड़ के डाल सकते हैं या उसको जो मारा जाएगा। जी मिल गया सुरैया? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। 4 आयत। हाँ जी, 4 से 7 आयत तक। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लोगो, ए उम्मतों और ए उम्मतें और ए मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नय और सितार और रबाब और बरबत और चंगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबुकत नजर बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सिजदा करो, और जो कोई गिर कर सिजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। हाँ जी, बस ठीक इसलिए है। जिस वक्त सब लोगों ने करना और नया और स्तार और बाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबुकत नजर बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सिजदा किया। हाँ जी, बस तो उस वक्त चंद कसीर ओके। हाँ जी, बस ठीक है, थैंक यू। यानी हमें देखा कि जो नहीं सजदा करेगा उनको सजा मिलेगी, है ना, उनको मौत की सजा जो है, क्योंकि आग की भट्टी में जिसको डाला जाएगा वो बचेगा तो नहीं ना, है ना। तो उसको इस तरह उन्होंने उस वक्त ये एक कानून जो था बनाया था नबूकत नजर बादशाह ने, कि अपनी मूर्ति जो थी उसने एक जगह लगाई थी और सारे उसके सामने सजदा करते थे। तो अब भी बिल्कुल इसी तरह होगा, यानी वो जो मुखालफे मसीह है उसकी मूरत जो है वो बनाई जाएगी और इंटरनेट के ज़रिए या जैसे टीवी के ज़रिए अब सारी दुनिया में, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे फ़ोन जो हैं वो चेक हो रहे हैं, हमारी हर चीज़ को जो कुछ हम करते हैं वो जैसे कह लें कि वो देख रहे हैं या वो नोट कर रहे हैं या वो चेक कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए वो हमें देख रहे हैं ये इंटरनेट के ज़रिए। हम समझते हैं कि हमारी किसी बात का उनको नहीं पता चलता, है ना? लेकिन वो सब कुछ चेक कर रहे हैं और ख़ास मैं कहूँगी कि जो ये कहते हैं कि ये चिप जो है या चिप कह लें या ये जो वैक्सीन है, वो कहते हैं कि इसमें भी एक वो आला जैसा जो है वो लगा रहे हैं कि वो इसको चेक इस पे हर एक जैसे कह लें इसकी मूवमेंट पे वो इसको चेक कर रहे हैं, यानी हुकूमतें जो हैं हर बंदे को, इसीलिए वो
बार बार इस पे ज्यादा जोर जो है वो दे रहे हैं। कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन वो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चेक करने के लिए उस बंदे की अंदर जो आला जैसा है वो लगा रहे हैं। तो ये इसीलिए बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए ये इस तरह से लोगों को चेक करेंगे कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और ये भी आपने देखा होगा कि हर जगह कैमरे भी लगाए गए हैं, चौराहों पे या गलियों में या घरों में भी। तो ये सारा कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये कह लें कि और ज़्यादा जदीद कह लें आलात जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं या उस तक पहुँचते-पहुँचते उस दौर में तो ये सब कुछ कंट्रोल जो है वो करेंगे कि कौन कर रहा है। जब ये हो सकता है किसी जगह वो मुकर्रर करेंगे, इस जगह सब इकट्ठा हों और उस टाइम पे उसको सजदा करें, है ना? तो ये लेकिन होगा इसी तरह, चाहे वो हो सकता है घरों में है या कोई जगह वो मुकर्रर करेंगे, इस टाइम वहाँ पे जाना है, हाज़िरी होगी और उसको सजदा करना पड़ेगा, जो वो एंटी क्राइस्ट होगा या जो उसका बुत बनाया जाएगा। तो इसलिए ये जिस तरह दानियल के दौर में हुआ था बिल्कुल इसी तरह इसके दौर में जो मुखालिफ मसीह है या वो 7 साला मुसीबतों का जो दौर होगा, उसमें ये किया जाएगा और जो नहीं करेगा उसको मौत की सज़ा जो है वो दी जाएगी, है ना? तो इसलिए ये जो इस आयत में हमने पढ़ा कि अ, वो बड़े-बड़े काम जो है या मौज़े जो है वो दिखाएगा और उसका बुत जो है वो बनाया जाएगा और उसके पास इख्तियार होगा कि वो सबको क्या करे, कत्ल करवाए। जो इस भगवान की पूजा जो है वो नहीं करेगा और ये सबको ही करना पड़ेगा, चाहे छोटा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गुलाम है, यानी सबको ही करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ये निज़ाम जो है या ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा उस वक़्त। कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा, है ना? कि ये जी मैं तो बहुत अमीर हूँ या बहुत वो सबको ही करना पड़ेगा, चाहे गरीब है। लेकिन उस वक़्त जिस तरह दानियल के दौर में वो तीनों दोस्तों ने वो क्या वो सदरक, मेसक और अब्दुन्नेगो जो थे, उन्होंने सजदा नहीं किया था, तो उनको सज़ा मिली थी। तो इस दौर में भी जो इस हैवान के जो है वो सजदा नहीं करेगा उसकी बुत की, तो उनको सज़ाए मौत जो है वो मिलेगी, है ना? तो ये कानून जो सारे हैं ये वो झूठा नबी के ज़रिए कह लें, ये पूरे कह लें निज़ाम जो है बनेगा और ये जो रोमन तर्ज़ हुकूमत जो थी ये कलीसिया जो थी या मसीही कलीसिया जो थी, उनको इससे जैसे कहते हैं बड़े मुतासिर हुए थे या बड़े तो उन्होंने ये क्या किया जो उनका निज़ाम था सारा, जिस तरह की रोमी हुकूमत थी, उन्होंने वो सारा निज़ाम जो था या वो सारे कानून जो थे, वो कलीसिया के अंदर ले आए थे। जो उस वक़्त कलीसिया थी। तो सारे जो उनके रूल थे या जिस तरह वो करते थे रोमी हुकूमत, तो उसी तरह क्या हुआ था कि ये मसीहियत के अंदर या ये कलीसिया के अंदर या खुदा उनके जो लोग थे, उनके अंदर वो ही कानून या जिस तरह वो करती थी रोमी हुकूमत, तो वो मसीहियत के अंदर आ गई थी क्योंकि ये बड़े उनसे एक इनके दिल और दिमाग पे ये एक किस्म का कह लें उनका जो निज़ाम था, उनके जो कानून थे और किस तरह वो बड़े मुत्तहिद होके चलते थे या हुक्म मानते थे, तो ये इनको भी मसीहत जो थी या कलीसिया जो थी ये सारा निज़ाम इसके अंदर भी आ गया, जहाँ से ये पोप आज़म जो था, ये निकला था या जिस तरह बिशप, पोप ये सारे जो ओहदे हैं, जिस तरह वज़ारतें हुकूमत में होती हैं कि अ, ये मिनिस्टर है या ना है ना, तो इसी तरह ये निज़ाम जो सारा जो था वो मसीहत में आ गया था, कलीसिया में आ गया था, है ना? क्योंकि ये बड़ी कलीसिया जो थी या उस वक़्त के जो लोग थे, मसीही थे, वो बड़े मुतासिर थे रोमी हुकूमत से।
तो ये उनके दिलो दिमाग पे छाई हुई थी, तो उन्होंने वही सारे कानून जो थे वो मसीहत में ले आए और उस तरह वो उनके कह लें कि पोप और पोप के नीचे जो हैं कह लें बिशप या जो भी हैं सारे जो आपको पता ही है ना। तो ये उस वक्त ये शुरू हुआ था, तो अब भी क्या होगा, ये सारी कलीसियां जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगी। यानी आलमगीर जो कलीसिया है, जो जमातें हैं, जो सारे मसीह हैं, कोई भी मिशन है, वो सारी एक ही लीडर के नीचे आ जाएंगी, या एक ही जैसे कह लें कि वो पोप के अंडर जो है वो आ जाएंगी। तो उसके पास पूरा इख्तियार होगा, वो जो हुक्म जारी करेगा, जो वो कहेगा, जो वो रूल बनाएगा, जो कानून बनाएगा, उस पे सबको अमल जो है वो करना पड़ेगा, है ना? लेकिन हमें जो है खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो तर्ज़े कह लें हुकूमत है या कानून जो है उससे मना किया है। ये मसीहियत के अंदर नहीं होने चाहिए। हम एक हवाला पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 25 और 26 आयत, जिसमें जो अब मसीहियत में ये जो सारे ओहदे हैं या वज़ारतें हैं या जो भी कुछ है, ये खुदा यीशु मसीह ने हमें इनसे मना किया है। हमें खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जाओ शागिर्द बनाओ और खिदमत करने के लिए कहा, उनके ऊपर रूल करने के लिए नहीं कहा। जी अंजना आप निकालना और सुरैया मत्ती 20 जी। बाब उसकी 25 और 26 आयत। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, हाँ जी, जी सुरैया। जी प्रेज द लॉर्ड। जी। 26 20 तुम्हें बाब ऐसा 26। जी, हाँ जी, तुम्हें ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। हाँ आमीन। जी, आमीन। हाँ जी। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह उसने करके दिखाया, वो शागिर्दों के ऊपर इस तरह जैसे खुदावंद ने कहा कि दूसरे सरदार जो है अपने जो कलीसिया कह लें या शागिर्द कह लें या उनके ऊपर हुक्म नहीं चलाते। इस तरह का इख्तियार जो है वो नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी खिदमत की और इस तरह का जो कह लें करके दिखाया। और आगे जो खुदावंद के खादम हैं, जो पास्टर हैं, जो भी हैं, उनको भी खुदावंद ने यही कहा करने के लिए कि वो अपना इख्तियार ना इस्तेमाल करें, इस तरह के रूल ना बनाएं, है ना? बल्कि क्या करें, उनकी खिदमत करें, शागिर्द बनाएं, है ना? और लेकिन ये कलीसिया में आ गया हुआ है, तो यही इख्तियार वो उस वक़्त वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन खुदावंद ने हमें खुदावंद यीशु मसीह के देखें खुद के अल्फाज़ हैं कि ये जो रूल बने हुए हैं या ये जो जिस तरह का निज़ाम मसीहियत में आ गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये साफ-साफ हमें मना किया है। उसने कहा है कि बल्कि खादम की तरह अपनी जो कलीसिया कह लें या चर्च जो है, उनकी खिदमत करनी है, ना कि खिदमत करवानी है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए थे, उनके ऊपर हुक्म नहीं चलाया था, अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन ये जो लीडर होगा ये या है ना? वो इख्तियार को इस्तेमाल करता है कि जो उसका हुक्म नहीं मानेंगे, उनको जेलों में डाला जाएगा, है ना? अ, या इस तरह की जो एक ओहदे हैं, वो जो हैं वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं जैसे खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, है ना? और खुदावंद यीशु मसीह ने अगर ये सिखाना होता कि इस तरह से तुमने करना है, तो वो उसी वक़्त खुद जैसे कह लें वो पोप होता
اور باقی کے شاگردوں کو بھی وہ دے دیتا کہ ہاں جی پترس تیری یہ جگہ ہے، یوحنا تیری یہ جگہ ہے یا یہ جگہ ہے نا. خداوند نے ایسا کوئی رول نہیں بنایا تھا خداوند یسوع مسیح نے. اور آگے جو پہلی کلیسیا تھی خداوند یسوع مسیح کے اعمال کی بک ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا کوئی وہ رول یا وہ ایسا نہیں، سب ہی شاگرد برابر ہی کام کرتے تھے. یا جیسے کہہ لیں کہ ایک دوسرے کی، یا جس طرح ہم پالوس رسول کی خدمت دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں جاتا تھا وہاں پہ خود کام کرتا تھا اور اپنے جیسے کہہ لیں جو خرچے تھے وہ خود اٹھاتا تھا، حالانکہ وہ اتنا بڑا خدا کا خادم تھا اور خود وہ کام کر کے محنت کر کے ادھر جہاں بھی جس علاقے میں بھی جاتا تھا خدمت کرتا تھا تو اپنے خرچے وہ خود پورے کرتا تھا. یہ ہمیں خطوں میں ملتا ہے نا. تو اس لیے یہ جو نظام بنا ہوا ہے یہ خداوند کے ایک تعلیم کے کہہ لیں کہ ٹھیک نہیں ہے، خلاف ہے کہ یہ جو اختیار جتاتے ہیں، حکم چلاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پہ نہ حکم چلایا تھا نہ اختیار کو یوز کیا تھا، لیکن یہ کلیسیا جو ہے یا اب جو چرچز میں اس طرح کا نظام جو ہے وہ بنا ہوا ہے، یہ خداوند کے تعلیم کے کہنے کے خلاف ہے. اس طرح کلیسیوں میں نہیں ہونا چاہیے ہے نا. تو یہ جو جھوٹا نبی ہے یہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ کلیسیا میں سے نکلے گا اور یہ ایسے ایسے رول بنائے گا اس وقت یا بنا رہا ہے وہ. اور اس لیے جو بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا اس کو سزا جو ہے وہ ملے گی ہے نا. تو یہ اس کے ساتھ ملا ہوگا جو مخالف مسیح ہے، جو جھوٹا نبی ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. اور ان دونوں کا بلکہ یہ تینوں کی جو تسلیس ہے جیسے جو شیطانی ایک تسلیس ہے، وہ جیسے ہم نے اس دن بھی اس پہ بات کی تھی کہ اس نے ساری قوموں کو ملایا ہوا ہے نا. تو یہ ایک لیڈر ہے، لیکن خداوند نے ہمیں یہ منع کیا کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے، باقی جو قومیں ہیں ان کا زندہ خدا نہیں ہے. تو یہ تینوں مل کے کیا کریں گے؟ یہ اس وقت دنیا پہ راج کریں گے اور سارا جو ایک نظام ہے روپے پیسے کا، کھانے پینے کا، اسکولوں کا، جابس وغیرہ کا، گھروں کا، سارا کچھ جو ہے ان کے اختیار میں ہوگا. بلکہ ابھی ہی جو کہہ لیں جو بینک ہیں یا کہہ لیں تنظیمیں ہیں بڑے بڑے یا دنیا کے جو بھی نظام چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے خفیہ طور پہ کہہ لیں کہ اپنا جو اختیار ہے یا اپنا جو ہے وہ اس کو دیا ہوا ہے پہلے ہی. جیسے شاید کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو بینکوں کا ایک خفیہ جو عدد ہے یا کوڈ نمبر جو ہے وہ 666 ہے، جو کہ ہمیں پتا ہے جو کہ کس کا نمبر ہے، شیطان کا نمبر ہے یا اینٹی کرائسٹ کا نمبر ہے. اور جو کیا کہتے ہیں کمپیوٹر ہے اس کا جو کوڈ نمبر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ 666 ہے. جو ورلڈ بینک ہے اس کا بھی خفیہ جو نمبر ہے وہ 666 ہے. اور آسٹریلیا کا کہتے ہیں کہ جو نیشنل بینک ہے اس کا بھی خفیہ نمبر جو ہے 666 ہے. کریڈٹ کارڈ جو استعمال کرتے ہیں اس کا بھی نمبر جو ہے 666 ہے. اور جو ٹی وی ہے اور ٹیلی فون جو ہے اس کا بھی کوڈ نمبر 666 ہے. تو اس لیے سب کچھ پہلے سے ہی تنظیمیں، بینک، کارخانے، یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے اپنا خفیہ طور پہ ابھی تو یعنی ایک ہڈن جو ہے اپنا اختیار جو ہے اس کو دیا ہوا ہے. لیکن وہ اس دور میں کیا ہوگا، یہ پورا کھل کے سامنے جیسے کہہ لیں کہ اس کو اپنا اختیار جو ہے اپنا اس کو مخالف مسیح کو یہ جھوٹے نبی کے پاس یا یہ جو اسلحہ ہے اس کے پاس پوری دنیا کا جو ایک
ये सारे निज़ाम जो चल रहे हैं, कंप्यूटर का, इंटरनेट, जो टीवी है, फ़ोन है, सब कुछ इसके इख्तियार में होगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं कि इससे बच सके। इसीलिए लिखा है कि कोई खरीदो-फ़रोख्त, कोई जॉब, कोई स्कूल बच्चा या कोई टीचर, कोई भी आप कुछ कर नहीं सकते उस दौर में, क्योंकि सब कुछ इसके इख्तियार में होगा, सब कुछ इसके कंट्रोल में होगा। जो मुखालिफ़ मसीह है और झूठा नबी उसके साथ मिला हुआ है या उस वक़्त मिला होगा। और ये जो 666 नंबर है, तो मसीहियत में भी या कलाम में भी जो रूहानी ये जो अदद हैं, उनकी एक अहमियत है, तो वो हमें पता होना चाहिए जो हम मसीही हैं, यानी जो कलाम में हमें अदद मिलते हैं। अ, जो मुक़द्दसीन हैं उनको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे जो अ, नम यानी 1 से 12 तक जो थोड़ा-सा इसमें ज़िक्र है उसका मैं थोड़ा बताती हूँ। तो जो 1 नंबर है वो खुदावंद को ज़ाहिर करता है कि हमारा खुदा क्या है, एक खुदा है। 2 नंबर जो है वो गवाही को पेश करता है। जो 3 नंबर है वो तस्लीस को पेश करता है ना? ट्रिनिटी को पेश करता है। 4 नंबर जो है वो जो ज़मीन के जो चारों हवाएँ हैं, उसके कोने जो हैं उनको पेश करता है, आलमगीर बुत को पेश करता है। 5 नंबर जो है इंसान की जो 5 हिस्से हैं, उनको सेंसेस जो होती हैं उनको पेश करता है। जो 6 नंबर है वो गिरे हुए फरिश्तों को पेश करता है। 7 नंबर कामलियत को पेश करता है, वो सबको ही पता होगा है ना? और जो 8 नंबर है वो खिदमतों को पेश करता है, खिदमत को पेश करता है। 9 नंबर जो है वो रूल कुद्दस की नेमतों को पेश करता है ना? और 10 जो है वो शरीयत के जो 10 हुक्म हैं उनको पेश करता है। और 11 नंबर जो है बेतरतीबी को, अबतरी को पेश करता है। और 11 नंबर बेतरतीबी और 12 नंबर जो है वो खुदा यीशु मसीह के रसूलों को और उनकी तालीम को पेश करता है। तो ये जो 666 इसका कह लें नंबर है जो शैतान का है, तो ये गिराई हुई जो रूहें हैं उनको पेश करता है। और अस्तहा जो हैवान है, उसमें हमने सीखा था कि जो झूठा नबी है या जो मुखालिफ मसीह है, उसमें हमने देखा कि वो जो अथाह गढ़े से बदरूहें निकली थी, है ना? वो उसमें काम कर रही थी, तो इसलिए वो रूहें जो हैं वो कह लें कि इन तीनों में काम कर रही होंगी और ये मसीहियत के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर जबर जो है वो करेंगे, अज़ियत देंगे लोगों को। और ये पीछे वजह क्या है कि ये वही जो लूसीफर या वही पुराना असहा साम ड्रैगन जो खुदावंद के खिलाफ है शुरू से ही। जैसे हमने उसमें भी थोड़ा सीखा था कि आ, जो था नमरूद, है ना? वो क्या था? खुदावंद के खिलाफ था, है ना? तो उसमें जो स्पिरिट थी वो काम तो इसकी कर रही थी, इसी की, लूसीफर की या वो अस्तहा की स्पिरिट जो थी या शैतान की जो बदरू थी, वो काम कर रही थी। तो इसलिए ये सारे मिल के क्या करेंगे उस वक़्त, जो खुदा का नाम लेंगे। और अगर हम उसमें पैदाइश की किताब जो है जिसमें नमरूद का ज़िक्र है और उसके बारे में लिखा हुआ कि उसने दुनिया पे उस वक़्त जो वो बादशाह था, तो उसने बड़ा ही ज़ुल्म सितम किया था। तो इसीलिए उसका जो उम, क्या लगता है चचा या ताया लगता है जो सेत था, उसका क्या उसका नाम था? नूह का बेटा जो ये हाम के बेटे, उसकी औलाद थी। तो जो बड़ा था बेटा, उसने जाके इसको मारा था, इसकी जो बादशाही थी या उसको। और तब भी क्या हुआ था कि उसने पूरी उस वक़्त जो दुनिया की बादशाह थे उन सबको इकट्ठा किया था और उसको मारा था।
तो अब भी क्या होगा कि खुदावंद हमारा खुदा जो है जिंदा खुदा यीशु मसीह आएगा और उसकी जो सारी तसलीस आएगा, सारी जो इसकी ट्रिनिटी है, इसको खुदा यीशु मसीह आएगा और इसको ख़त्म करेगा, है ना। तो इसलिए ये मुखालफे मसीह जो है ये सबको इसकी छाप जो है ये वो लेनी पड़ेगी उस वक्त। और उसी तरफ जैसे कह लेंगे जो अभी जो वैक्सीन का है वो एक ट्रेलर जैसे कह लें, या वो एक वो उन्होंने चेक किया है कि हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं दुनिया को। तो इसलिए उस दौर में क्या होगा कि ये सामने आएंगे मुखालफे मसीह, और जो झूठा नबी है वो सामने आएगा और वो स्मरना की कलीसिया का पेशवा होगा। और वो कलीसिया में से ही निकलेगा, यानी मसीहियों में से ही निकलेगा जो मुखालफे मसीह होगा। तो वो दुनिया को एक किस्म का मुखालफे मसीह के साथ मिल के चलाएगा या कंट्रोल करेगा। तो इसलिए उस वक्त ये वाला दौर जो है ये होगा, और उस वक्त वो चिप जो है या मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो सबको लेना पड़ेगा। जो नहीं लेगा उसको जेल में डाला जाएगा या उसको मौत की सजा जो है वो दी जाएगी, है ना। तो इसलिए ये 13 चैप्टर जो है इसमें हम देखते हैं कि ये 666 जो नंबर है ये एक 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 यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वो हैवान का अदद भी है, लेकिन ये पूरा जो सिस्टम होगा, जो निज़ाम होगा उस वक्त, उसका अदद भी 666 है। यानी ये हमने देखा कि ये जो सारी तंजीमें हैं, बैंक हैं, या ये सारा निज़ाम जो है जो उस वक्त चलाया जाएगा, है ना, या अभी भी हम उसी में चल रहे हैं, है ना। तो ये असल में उसका नंबर जो है वो 666 है, और उस हैवान का नंबर जो है वो 666 होगा। तो इसलिए उस निज़ाम में अभी हम चल रहे हैं ना अभी भी, यानी ये जो बैंक है या ये सब कुछ निज़ाम जो है उसने अपना एक कह लें कंट्रोल जो है या इख्तियार उसको दिया हुआ है। अभी हिडन है, अभी छुपा हुआ है, खुफिया तौर पे दिया हुआ, लेकिन उस वक्त खुल के ये सामने आएंगे। ये बैंक, ये कारखाने, या जो भी ये टेलीफोन, इंटरनेट, सब कुछ, जैसे कि कहते हैं कि ये जो www हम लिखते हैं उसके ईमेल का, है ना, तो इसको भी कहते हैं कि वो उसका मतलब है 666, है ना। तो इसलिए अभी अ, उसकी स्पिरिट जो है या खुफिया तौर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त खुल के वो सामने आएगा। वो 7 साल जो मुसीबतों का दौर होगा उसमें वो खुल के सामने आएगा, ये जो मुखालफे मसीह है और जो झूठा नबी है जो कलीसिया को कंट्रोल कर रहा है, अभी कर रहा है वो, है ना। तो उस वक्त खुल के सामने आएगा और ये तीनों मिलके जो मसीही हैं, मसीही कौम, उन पे जुल्म और सितम करेंगे। और या तो कुछ लोग जो हैं वो ये जो छाप है जो माथे पे लगाई जाएगी या हाथ के अंगूठे में उसको लगाया जाएगा, है ना, ये आपको शायद नजर आ रहा होगा। अभी भी शायद आपने चेक किया हो कि बुखार को चेक करने के लिए जब मार्केट में या कहीं जॉब प्लेस पे ये जाते थे तो इस तरह से वो चेक करते थे, शायद कुछ लोगों को पता हो, है ना। तो माथे पे तब भी वो निशान जो है, कुछ कहते हैं कि खदवाया जाएगा, यानी टैटू जो है वो होगा, लेकिन कुछ का ख्याल है कि वो अ, तो इसलिए ये इसके बारे में थोड़ा फर्क राय है, लेकिन उसका निशान जो है तब उस वक्त सबको लेना पड़ेगा। कोई खरीदो फरोख्त कुछ भी नहीं कर सके। तो इसलिए वो दौर होगा, वो हिकमत का दौर होगा, यानी जो हिकमत का मौका होगा, यानी जो अक्लमंदी से खुदावंद की हिकमत से चलेगा वो निशान नहीं लेगा। लेकिन जो बेवकूफ़ गवारियाँ होंगी वो उस वक्त वो माथे पे या हाथों में वो जो निशान है वो जो वो ले लेंगे, है ना।
तो इसलिए हम जो मसीही हैं हमें पता हो कि ये निशान जो है हमें नहीं लेना, है ना? तो आ, हम सब अभी से तैयारी करें कि खुदावंद हम पे रहम करे, फजल करे कि हम उस दौर में से ना ही गुजरना पड़े। हम उस के जो लोग हैं जो जाग रहे हैं, जिनके ऊपर ये गहरे भेद, ये मुकाशफे खुल रहे हैं, वो तैयारी करें, पूरी अपनी जी जान से कोशिश करें कि खुदावंद मैं अपने बदन को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, सुपुर्द कर देती हूँ, तेरे कंट्रोल में, तेरे होल्ड में दे देता हूँ कि खुदावंद तू मुझे उस तरह से पाक बना। और खुदावंद के हमें कोई नहीं बचा सकता, कुछ कोई हल नहीं है सवाए इसके कि हम जो खुदावंद हमें हुक्म देता है हम उस पे अमल करें, और कोई हल नहीं है। जो जितना जितना आपको पता चलता है उस पे अमल करने की कोशिश करें, और कोई हल नहीं है। यही कलाम हमें पाक साफ बना रहा है, यही कलाम जो है हमें उस फजल पे खड़ा रख सकता है जो खुदावंद ने मुफ्त हमारे लिए मुहैया किया है। और कोई हल नहीं है, कोई जादू नहीं है कि हम बच जाएं, है ना? तो ये कलाम की जो सच्चाइयां हैं उस पे ही अमल करके हम बच सकते हैं उस दौर से, उस मुसीबतों के दौर से, उस जो आने वाला है। तो हम सब ने कोशिश करनी है कि जितना भी एक लफ्ज़ चाहे एक दिन में पता चलता है तो हम कोशिश करें। आज फ़र्ज़ करें हमें पता चला है कि हमने गुस्सा नहीं करना, हमारे दिल में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, और बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, तल्ख़ी जो सख्त हमारा मिज़ाज होता है, हम दूसरों के साथ बड़ा सख्ती के साथ बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो एक ही बात चलें फ़र्ज़ करें आज हमें पता चली तो उस पे अमल करें, है ना? क्योंकि ये क्या है, शैतान की सिफ़तें हैं। ये हमारे अंदर अगर नफ़रत है, कड़वाहट है, गुस्सा है, नाराज़गी है, झूठ बोलते हैं, हसद है, तो अगर एक-एक ही हम बात को लें तो खुदावंद के दिन तक उसके दिन आने के दिन तक हम तैयार हो सकते हैं, है ना? जिस तरह फिलिप्पियों के महलफात में लिखा हुआ है कि जिसने वो नेक काम हम में शुरू किए हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के दिन के आने तक वो पूरा करेगा। उसने वादा किया है, तो वो पूरा करेगा। तो हम कोशिश करें, खुदावंद जो है वो हमारी मदद करेगा ताकि हम उस जो आज़माइश जो है या वो दिन जो है या वो फंदा जो है या वो चोर की तरह दिन आने वाला है, उसमें से हमें ना गुज़रना पड़े, है ना? या फर्माबरदारी जो है या मोहब्बत जो है, वो हमारे अंदर आ जाए, है ना? तो इसलिए हम कोशिश करें कि एक-एक करके हमारे अंदर से ये गंदे बिहेवियर जो हैं वो निकलें। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फ़ज़ल दे, रहम करे, तरस खाए कि हम पाक दामन कँवारी की मानें तो उस मर्द बच्चे की तरह तैयार हों। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू सनिया नहीं है हमारे साथ। तो अगर सुरैया आप प्रेयर में लीड कर सकती हैं तो। जी सुरैया है हमारे साथ। किसी की रिक्वेस्ट है तो वो ज़रूर बता दें। अमनदीप ने कहा था सुरैया के उसके गुस्से के लिए आप प्रेयर करें, और जी माया ने कुछ कहना है। जी सिस्टर महेंद्र। हाँ जी, कल जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी मम्मी ने, हाँ जी प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मामा के लिए भी प्रेयर करना। ओके जी ठीक है। दी आवाज नहीं आ रही? आ रही है माया आ रही है, मुझे तो आ रही है। अच्छा, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि कल जो मैंने रिक्वेस्ट दी थी उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, और अपने सब ग्रुप को धन्यवाद जो हमने कल उस बच्ची के लिए प्रार्थना की। वो बिल्कुल ठीक होश में है और उसका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है। तो प्रभु की धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बिल्कुल ठीक है अभी वो। हालेलुया।
हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। हम कल बात ही कर रहे थे, उसने पापा बोल रहे थे कि माया हमें बताएगी, मैंने कहा वो जरूर बताएगी। प्रेज गॉड। जी श्रेया, Praise God. सभा के लिए प्रेयर करनी है और सिस्टर मेरा के लिए भी महेंद्र। करना। हम्म, हेलो। हाँ जी, ओके एक मिनट। प्रेज द मेरा लॉर्ड। के लिए बात करनी है, ठीक है। ओके ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਰੌਲਾ ਫੇਰ ਪਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰ। ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ। ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा यीशु मसीह के उस वादे पर, जो इस कलाम पर जो हमने अभी पढ़ा है कि हमारा खुदावन खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। वो पाँव धोने के लिए आया, वो किसी का नुकसान चाहने के लिए नहीं आया, वो किसी को भी किसी से भी वो इस तरह का जो जुल्म स्तम है या हुकूमत करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो खिदमत करने के लिए अपने लोगों के लिए इस दुनिया में आ गया। आए हम अपने मुनजी अपने खुदावन के इस सारे काम पर तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे कि हमारा खुदावन ने खुद वो कादर मुतलिक था, खुद वो खुदा था, तो भी उसने इंसान के मुशाबा हो गया ताकि वो इंसानों में रहकर उनकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सके और उनको हर तरह के गुनाह से उनको मुआफ़ी दे सके, उनकी खिदमत कर सके। हम अपने मुनजी अपने खुदावन की तरफ निगाहें लगाते हैं और यस लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू जीसस वंडरफुल। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, खुदावन उसके आने के लिए, उसके पैदा होने के लिए, उसके मार खाने के लिए, उसके कोड़े के लिए, खुदावन उसके छलनी किए जाने के लिए, उसके स्लीब पर चढ़ाए जाने के लिए, बाप लान तान किए जाने के लिए, खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ इस्ताइश करते हैं कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है बाप जो खिदमत करवाता नहीं है बल्कि खिदमत करने के लिए आया बाप। खुदावन तेरे शुक्र गुजार है इस मुनजी के लिए, इस खालिक के लिए, इस मालिक के लिए। खुदावन जो तेरे बेटे यीशु मसीह में हमारी जिंदगी में इस दुनिया में आया है बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन बख्श क्या बाप हमारी जिंदगी भी तेरे बेटे के ताबे हो जाए, हमारी जिंदगी भी तेरे कलाम के ताबे हो जाए, हमारी जिंदगी भी है बाप खुदावन बाप खुदावन रसूलों की तालीम पर खुदावन अबाक बनती चली जाए। खुदावन तेरे शुक्र गुजार है और यस फादर गॉड हालेलुया, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं आसमानी पिता। हम तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए। खुदावन तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। ए बाप तेरे शुक्र गुजार है बाप सारे खुदावन सारे इस पीरियड के लिए खुदावन जो अभी हमने तेरी हजूरी में गुजारा, खुदावन तेरी आवाज को सुना, तेरी बातों को सुना, तेरे शुक्र गुजार है खुदावन तूने अपने बंदी में से होकर खुदावन तूने खुदावन किसी एक से भी तूने कलाम कर दिया तो खुदावन तेरी बंदी की खिदमत तेरा मकसद है खुदावन खुदावन तेरे कलाम का मकसद पूरा किसी की जिंदगी में भी काम किया और खुदावन खास तौर पर सुशीला में अब आप और हमारे अंदर जो तूने काम किए है बाप गुजार है तेरी ही तरफ रूप में आता है, वो असर दिखा रहता है। तो तेरा कलाम शोला भी है, तेरा कलाम शबनम भी है। शुक्रगुजार है तेरे कलाम के लिए। दान खताओं को हमारी गलत अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। दान अब आप तेरा कलाम दान हमें अब आप हमारी आंखों को खोल देता है, ज़हन को अब आप हमारे शान को खोल देता है। हम तेरे शुक्रगुजार है, दिलों को नरमा देता है। इस बात के के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे जलाली पिता रब्बुल फाज इस्राएल के शुक्रगुजार है कि खुदावन जो तेरी बंदी
अब आप दावन के हमें अब आप सख्त गजा अब आप दे रही हैं कि अब आप जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि हम दूध पीते हैं, यानी अब आप हम नरम बातों ही को ही ना लेते रहे, या हम नरम बातें ही हम पसंद ना करें अब आप, बल्कि खुदावन तो तू हमें बता रहा है, तो हमें सिखा रहा है, तो हमें छान रहा है अब आप, तो हमें बाप ठोस गजा तो हमें खिला रहा है, ताकि हम अब अपनी समझ में अब तौर पर अब आप बड़े बने, हम रूहानी तौर पर बाप दान दान अब आप तेरे कद के अंदर अपने अंदर ले सके, ते करते हैं जलाल पिता तेरा शुक्र तू हम ठोस देंगे अब तू सेव दे रहा है। सो अब आप तेरे आगे दाऊन मिन्नत करते हैं कि हम में से दाऊन जो भी हमें गलतियां कोताहियां दाऊन अब आप गलतियां है बाप, वो तेरे कलाम के सिलसिले से हमारे अंदर से अब Hallelujah, hallelujah. Jesus, oh, re shere bere bere katriya re be sandara sandara. Hallelujah, hallelujah. Re shere bere bere katriya re be sandara sandara sandara. Hallelujah. Shere bere bere sandara. हमारे Hallelujah. पूरे ग्रुप में से हमारे खानदान में से दान मेरी Ore shere bere 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 sandara 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 sandara. Shikriya katriya re be sandara sandara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Re sandara sandara. Shikriya katriya raba raba. Hallelujah, hallelujah. Ye re shikriya katriya re be siya raba shikriya katriya. Raba 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 siya ra shiriya katriya re be siya sandara sandara. Hallelujah, 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 hallelujah. Re shere bere bere sandara sandara. हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा। खुदा उस बच्ची के लिए, जसिका के लिए कि खुदा तूने उसको टच किया, खुदा तूने उसको शिफा दी। खुदा तूने खुदा उस बच्ची के माँ बाप को खुदा हमें शुक्र गुजारी का मौका दिया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाकी की रिकवरी को भी खुदा तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा उस बच्ची को छूना खुदा और खुदा यीशु अपने नाम को इज्जत और जलाल देना, ताकि खुदा तू हमारी जिंदगियों में, तू उस फैमिली की जिंदगी में, माया की जिंदगी में खुदा इसकी फैमिली में ऊंचा हो। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। आज तक जितनी भी खुदा इस ग्रुप में खुदा हमने दुआएं की, जो तूने दुआओं का जवाब दिया, उन सबके लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तू हमारी जिंदगी में खुदा इस ग्रुप में काम कर रहा है, तू अपने जलाल को दिखा रहा है खुदा, तू हमें सिखा रहा है, तू बता रहा है खुदा तो उन लोगों को जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि खुदा तू हमारा जिंदा खुदा है, तू यहाँ पे मौजूद है खुदा, तू दुआओं को सुनता है और खुदा तू हमें जवाब देता है। खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदा माया के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी फिक्र के लिए कि वो दूसरों के लिए वो दर्द, वो प्यार, वो मोहब्बत रखती है खुदा और दर्द लेके दुआएं करती है खुदा। अपनी बच्ची को और अपने जलाल के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल कर और खुदा बोझ दे के खुदा वो इस ग्रुप के लिए और अपनी फैमिली के लिए खुदा दर्द लेके, बोझ लेके दुआ करती रहे यीशु के नाम से। खुदा अपनी बेटी को बड़ी ही बरकत देना खुदा और खुदा हम सबक को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं। जो भी खुदा चेस्ट इन्फेक्शन है, गले की खराबी है खुदा, बुखार है खुदा, गले में खराश है खुदा यीशु के नाम से खुदा जकड़ा हुआ है कहीं, यीशु के नाम से इन सारी बदी की कुव्वतों को मैं तेरी बेटी के बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। यीशु के नाम से तेरी बेटी मुकम्मल शिफा पाए खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा जो भी इसकी बदनी कमजोरी है खुदा तेरे जोर में बदल जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा तेरी बेटी मुकम्मल शिफा पाए और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा। इलाही शिफा को खुदा तेरी बेटी के अंदर मांगती हूँ, वो शिफा बख्श खून
खुदा यस्सु तूने कोहे कलवरी पे जो बहाया, जो खुदा तूने सलीब के जरिए, सलीबी मौत के जरिए खुदा तूने बहाया, खुदा तेरे उस लहू को तेरी बेटी के ऊपर मांगती हूँ यस्सु के नाम से। खुदा एक एक बदन के अज़ा को खुदा तेरे लहू में छुपा देती हूँ, तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ। खुदा सारी बीमारी खुदा तेरे यस्सु नाम से खत्म हो जाए खुदा। और तेरी बेटी खुदा गवाही दे के मेरे यस्सु ने, मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं खुदा। यस्सु के नाम से बड़ी ही कुदरत के साथ अपनी बेटी को खुदा अपनी फैमिली के लिए खुदा दुआ के लिए रखने में खड़ी हो। तेरी बेटी दुआ के लिए इस्तेमाल कर खुदा यस्सु के नाम से। खुदा बहुत सी रूहें इसके वसीला से बच जाएं खुदा यस्सु के नाम से। खुदा मैं सिस्टर महेंद्र को खुदा उसके जो घर का सारा मामला है खुदा मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ। खुदा अपने बेटी की तरफ से हो के खुदा तू जंग लड़ खुदा यस्सु के नाम से। सारे मामलात को खुदा जो भी तेरी बेटी की जिंदगी में उन सब दुखों को, परेशानियों को, तकलीफों को खुदा यस्सु मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ। खुदा अपनी बेटी को खुदा तो खुशी दे, शादमानी दे, तसल्ली दे, इत्मीनान दे खुदा अपने बच्चों की तरफ से खुदा। और ये इस घर के मामले में, दीवार के बनाने में खुदा जो भी रुकावटें हैं तेरी यस्सु नाम से दूर हो जाए खुदा। और तेरी बेटी खुदा गवाही दे खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा इसकी जिंदगी से, इसके बच्चों की जिंदगी खुदा से खुदा यस्सु के नाम से खुदा। और खुदा यस्सु मैं सुशीला को खास तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदा उसका जो भी प्रोसेस है खुदा तू उसके आगे आगे होके चलना खुदा कोई परेशानी, कोई खुदा रुकावट ना आए तेरी बच्ची की जिंदगी में खुदा अपनी जॉब प्लेस पे जब वो जाती है, काम करती है, तो खुदा अपने बेटी को अपने जलाल के लिए वहां पे इस्तेमाल करना खुदा इसके उठने बैठने से, चलने फिरने से खुदा बोलने से खुदा यस्सु तू नजर आए, लोग जाने के खुदा ये तेरी बेटी है खुदा बाप। खुदा यस्सु खुदा इसके अंदर से जो भी गंदी बातें हैं, काम है खुदा वो तेरे यस्सु नाम से जाते रहे। और खुदा तेरी बेटी तुझ में जोर को पकड़ती जाए खुदा अपने गहरे भेद, गहरे मकाशफात खोल खुदा ये दूध पीने वाली ना हो खुदा बल्कि इसको ठोस ग़िज़ा जो है उसको हजम कर, उसको ले और उसको हजम करे खुदा यस्सु के नाम से। और जहां जहां जाए तेरी मनादी करे, तेरा प्रचार करे खुदा इसके वसीले से बहुत सी रूहें बचे खुदा यस्सु के नाम से खुदा। और खुदा सिस्टर अमनदीप को खुदा यस्सु में तेरे खून में छुपाती, इसकी फैमिली को खुदा जो भी घर में लड़ाई झगड़ा है, जो भी खुदा कंफ्यूजन है खुदा जो भी कड़वाहट की स्पिरिट है खुदा तलखी की स्पिरिट है खुदा बुग़्ज़ है खुदा नफरत है कहीं खुदा यस्सु के नाम से ये सारी बदी की कुत्तों को खुदा इसके घर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। तेरी बेटी की जिंदगी में मियाँ बीवी में प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती को मांगती खुदा जो भी बदी की कुत्तें दीवारें खड़ी करने की, जुदाइयां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उन सारी बदी की कुत्तों को तेरी बेटी की फैमिली लाइफ से निकल जाने का हुक्म देती हूँ खुदा। इस घर में खुदा खुशी, शादमानी, दुआ की रूह को खुदा मांगती हूँ। प्रस्तिज का मसा इस घर पे ठहर जाए खुदा। तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ कि खुदा तेरी बेटी के घर में हर वक्त प्रस्तिश होती रहे खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे खुदा पूरी फैमिली मिलकर खुदा यस्सु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा ये तेरी बेटी की फैमिली यूनाइट हो खुदा यस्सु के नाम से। इनमें प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, मेल मिलाप हो खुदा यस्सु के नाम से। इनको एक रूह में बांध दे खुदा यस्सु के नाम से। खुदा नंजना की स्टडी को खुदा मैं यस्सु तेरे खून में छुपाती हूँ यस्सु के नाम से। खुदा अपनी बेटी को सरफराज करना, कामयाब करना खुदा बुलंदियों पे लेके जाना खुदा जो भी खुदा इसकी असाइनमेंट है, टेस्ट हो खुदा एग्जाम हो यस्सु के नाम से। खुदा तेरी बेटी 100% मार्क्स ले खुदा यस्सु के नाम से। और खुदा तेरी बेटी के बदन से खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसकी पूरी फैमिली को खुदा, दिया को, वंदना को खुदा
यीशु तेरे खून में छुपाती हूँ, उसकी जिंदगी में भी गहरे काम कर खुदा, उसकी बेटी की जिंदगी में खुदा, सोनिया को, प्रिंस को खुदा, रूथ को, सैमुअल को खुदा, यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा, यीशु के नाम से खुदा। खुदा रूथ और सैमुअल को मुकम्मल शिफा दे खुदा, जो भी खारिश की, एलर्जी की खुदा, जो खुदा दाने हैं खुदा, यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए खुदा, उनका नामो निशान मिट जाए खुदा, खून की खराबी की वजह से या लीवर की खराबी की वजह से, किसी भी वजह से खुदा वो दाने निकल रहे हैं या खारिश हो रही है खुदा इचीनेस है खुदा, यीशु के नाम से खुदा वो बिल्कुल खत्म हो जाए खुदा, और तेरे बच्चे खुदा उनको अच्छी नींद मिले खुदा, उनके अंदर वो खुदा वो इत्मीनान, वो तसल्ली, वो खुशी, वो शादमानी खुदा आराम खुदा तेरे रूथ के और सैमुअल के बदन में आ जाए खुदा, यीशु के नाम से खुदा, तो वो मीठी नींद सोए खुदा, और खुदा सोनिया और प्रिंस खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा उनकी जिंदगी में, और वो गवाही दें कि हमारे यीशु ने, हमारे खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, यीशु के नाम से बड़े अपनी कुदरत से खुदा प्रिंस को और सोनिया को इस्तेमाल कर खुदा उनके ग्रुप में यस्सु तेरे जलाली काम हो, तेरे मौजे हो खुदा, जिंदगियां तब्दील हो खुदा यस्सु के नाम से खुदा, और खुदा यस्सु तू उनकी जिंदगियों में ऊंचा हो, इज्जत और जलाल पाए खुदा, जो भी खुदा बदी की कुव्वतें खुदा इस फैमिली, इस खूबसूरत फैमिली के खिलाफ काम कर रही हैं, यस्सु के नाम से वो पीछे हट जाए खुदा, सुरैया को, सैड्रक को, सारा को, समर को खुदा यीशु में तेरे लहू में छुपाती बड़ी कुदरत के साथ खुदा इस प्यारी फैमिली को इस्तेमाल कर खुदा, ये तेरे बड़े जबरदस्त सुरमा हो खुदा, और शैतान को हमेशा अपने पांव तले कुचलते रहे, उसकी सारी खुदा देखी अनदेखी कुव्वतों को खुदा यस्सु के नाम से खुदा यस्सु के नाम से खुदा अपने पांव तले कुचलते रहे और फतेहमंद जिंदगियां गुजारे खुदा, यस्सु के नाम से इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, कभी भी किसी चीज की कमी ना आने देना खुदा, इनके वसीला से बहुत सी रूहें बच जाए खुदा, श्रेया की मिनिस्ट्री में खुदा बड़े बड़े मौजे हों, बड़े काम हो, रूहें तब्दील हों, रूहें बचे खुदा जो कमजोर हैं वो जोरावर हों खुदा अपनी बेटी को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करना खुदा, ये तेरी बड़ी जबरदस्त बड़ी सुरमा हो खुदा, जब ये बोले तो खुदा इसके मुंह से तेरा पाक कलाम निकले खुदा, जिसके वसीला से जब ये बोले तो जिंदगियां तब्दील हों, बदरूहें डरती और कांपती हूँ उस जगह से, इसके घर से निकल जाए खुदा, और तेरी बेटी की जिंदगी में खुदा जो भी कमी कमजोरियां हैं तेरे जोर में बदल जाए खुदा, ये दूसरों के लिए बाइस बरकत साबित हो खुदा, यस्सु के नाम से कभी भी खुदा शैतान इसकी जिंदगी को देख के खुश ना हो खुदा, बल्कि वो शर्मिंदा हो खुदा, उसको आग लगती रहे खुदा यस्सु के नाम से, और तेरी बेटी खुदा तुझ में मजबूत हो खुदा, गहरे भेद खुले, गहरे मकाशफे खुले खुदा, जब तेरी बेटी कलाम को पढ़े, कलाम को बयान करे खुदा तो वो गहरे भेद खुलते जाए खुदा, कलाम की समझ आना शुरू हो जाए यस्सु के नाम से, जब तेरी बेटी गीत गाती है तो खुदा लोगों की जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाए खुदा, जुए टूटने शुरू हो जाए खुदा, बंधन खुलना शुरू हो जाए, जकड़े हुए लोग आजाद हों यस्सु के नाम से खुदा, और तेरी बेटी खुदा तुझ में गहरी होती जाए यस्सु के नाम से, जो नहीं आए खुदा उन सब के लिए भी खुदा यस्सु मैं तेरी बरकत को मांगती हूँ, उन सब की फैमिलियों के भी जिंदगी में बड़े गहरे काम हो यस्सु के नाम से। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं यस्सु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तसल्ली उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आने जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू सुमेरा, और के लिए भी मैं दुआ करती हूँ, बहन लड्डू के लिए भी खुदा उनको सुमेरा को मुकम्मल शिफा दे, बहाली आए, आजादी आए भाभी पप्पू की जिंदगी में भी यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। अगर किसी को गॉड ब्लेस यू। शेयर कर सकता है। कलाम में या दुआ में खुदा ने आपको टच किया है,
तो आप शेयर कर प्रेज सकते लॉर्ड। हाँ हाँ जी जी, कलाम से मुझे बड़ी तसल्ली मिली। आज का कलाम ऐसे लग रहा था जैसे मेरे लिए ये प्रेज गॉड प्रेज गॉड यस दी कलाम से तसल्ली मिली और प्रार्थना से भी तसल्ली मिली। हालेलुया प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे। और हमारा ईमान है सबका कि जो कुछ हमने दुआ में मांगा है वो हमें मिल गया है। आप ईमान रखें। तो गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट जी सारियां नू।